Good morning, students. Welcome back. नया दिन नया सेशन और आई वोंट से कुछ नए टर्म्स आई विल से रिपीटेड टर्म्स मगर we'll keep practicing as I promised you. This entire week we are only going to practice this. You might say sir अब आ गया है सर. नहीं, जब तक 100% I'll say 100% you are not super duper clear. ऐसा नहीं है कि याद है इसलिए आ गया. It should be आता है इसलिए आ गया. And that's where we are working on this entire sessions for this many days. ठीक है, हम नेक्स्ट वीक जो करने वाले हैं ना वो इसी चीज को एलिवेट करके हम नेक्स्ट वीक में जाने वाले हैं. बट बिफोर वी एंड दिस वीक, आज का सेशन खत्म होने के बाद कल आपका डाउट सेशन रखेंगे. तो जो भी डाउट्स है आपके दिमाग में, जो भी आ रहा है सर ये इम्पर्सनल क्यों है, ये पर्सनल क्यों है, सर ये जो टर्म है उसका मैं मतलब भूल गया हूँ, जो भी है ठीक है, जस्ट आज के सेशन के बाद send a message to your respective center and make sure that you are getting me the doubts by I'll say tonight 12, and tomorrow you will be getting your doubt session, rather yeah, tomorrow morning. But before I do that, for last time I'll say this particular exercise we are doing it wherein I'll be discussing the homework transactions which I gave you. तो अच्छी तरह से सुनना, अच्छी तरह से समझना, द लाइन ऑफ थिंकिंग दैट आई यूज टू गेट टू माई आंसर, मेक श्योर दैट आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग वही है. ठीक है, एनीथिंग एल्स यू आर डूइंग, मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग रॉन्ग. यस, यू माइट हैव some technical way of learning which might be better than mine. If at all it is better than mine, go ahead with it. But if at all it's a shortcut, remember that will never stay with you for a longer period of time. थिंग्स आर क्लियर. कुछ डाउट्स जो मुझे इस दौरान मिले, वन ऑफ द डाउट वाज, किसी ने मुझे पूछा कि सर आप हमेशा बोलते हो कि अगर तीनों के तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तो इम्पर्सनल, तीनों हो गए तो पर्सनल. कैन यू गिव अस एग्जांपल ऑफ सम अकाउंट्स के जिसमें एक आधा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ या दो नहीं हुए? आंसर इज देयर इज नो सच एग्जांपल. अगर एक होगा तो तीनों हो जाएंगे. ठीक है, there will be it won't be possible कि दो हो रहा है और तीसरा नहीं हो रहा है, और एक हो रहा है और दो नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं होगा. ये तीनों के तीनों कंडीशन या तो सेटिस्फाई होंगे या तो तीनों के तीनों सेटिस्फाई नहीं होंगे. होप दैट इज क्लियर एवरीवन. सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स वंस अगेन. अप्रोच इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. अप्रोच सही रखना, भले ही लंबा लगे मगर यही अप्रोच रखना. Don't go for any shortcut. Don't go for your memory, because memory will betray you anytime. Believe me, they are something which you don't trust, to be very honest. So make sure that your approach is absolutely the way I'm giving, and that's the reason why in PDF, every time you get a PDF, first page of the PDF is approach. हर रोज पढ़ना, ठीक है, ताकि दिमाग में छप जाए कि इसी तरीके से मुझे सीखना है और कोई तरीके से मैं नहीं सीखूंगा. थिंग्स आर क्लियर. सो नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टफ. आपको कुछ 20 अकाउंट दिए थे, ठीक है, वो 20 अकाउंट पर आज काम करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड देयर टाइप, that is whether it is personal or impersonal, and also their nature, that is whether it is expense, loss, income, gain, asset, liability. ठीक है, so let's start with the things. To start with, my first one is what we normally start the business with, that is capital. Once again, what is capital? तो सबसे पहले capital यानी ओनर का अकाउंट. तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ capital यानी ओनर का अकाउंट है, यानी एक चीज तो पक्का है, ये हो गया पर्सनल. Hope that is clear. अब ओनर का अकाउंट है, उसमें क्या दिखाता है ये? तो एनी मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस, either for commencement or for expansion, is recorded in books of business as owner's contribution, owner's stake or owner's capital. ये कैपिटल वो इकोनॉमिक्स वाला कैपिटल नहीं है. Hope that is clear. So this is monetary benefit given by owner to the business. Business अलग, owner अलग. Business is first party, owner is second party. Whatever business is receiving from either second party or third party, business is supposed to return back. And because business is supposed to return back, so this becomes
बिजनेस का लायबिलिटी। लायबिलिटी में अगर आगे जाना है तो इट इज इंटरनल और यू कैन से नॉन करंट लायबिलिटी। होप थिंग्स आर क्लियर। क्यों नॉन करंट? बिकॉज ओनर आखिर तक रहता है, सब चले जाएंगे, एंड में ओनर जाएगा। पता है मैंने सॉल्वेंसी समझाने के समय भी यही बात की थी कि अगर बिजनेस बंद होता है तो सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, जो पैसा आता है उससे सबसे पहले थर्ड पार्टी को पे किया जाता है, फिर जो बचता है वो सेकंड पार्टी को पे किया जाता है, फिर जो बचता है वो, एंड दैट्स व्हाई ओनर स्टेज स्टिल एंड, सो ओनर इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। थिंग्स आर क्लियर। दूसरे नंबर पर उसी से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो इंटरेस्ट जो होता है वो होता क्या है? इंटरेस्ट इज अ चार्ज दैट यू अप्लाई ऑन यूजिंग मनी। अगर आपका पैसा कोई यूज कर रहा है तो आप दूसरों पर लगाओगे ये चार्ज, और आप अगर किसी का पैसा यूज कर रहे हो तो दूसरे आप पर ये चार्ज लगाएंगे। सो बेसिकली दिस इज समथिंग विच यू हैव टू पे फॉर यूजिंग मनी ऑफ somebody else. Hope that is clear. This is to be paid every year. Because it is to be paid every year, तो अगर एक्सपेंस हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंस, अगर रिसीट हुआ तो ये रेवेन्यू रिसीट होगा। अब कब एक्सपेंस होता है कब रिसीट होता है वो जानने के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया है, दैट इज सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए इंटरेस्ट इनकम, सामने वाले के लिए एक्सपेंस। कैपिटल इज मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस। सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? ओनर का। तो ओनर के लिए इंटरेस्ट बनेगा इनकम, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट ओनर फील्स, वी आर इंटरेस्टेड विद व्हाट एंड हाउ बिजनेस फील्स, एंड दैट्स वेयर अगर ओनर के लिए इनकम है तो बिजनेस के लिए ये बन जाता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस में रेवेन्यू एक्सपेंस, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन। नहीं देंगे तो प्रोडक्शन नहीं रुक जाएगा, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू रिसीट है, लॉस है, गेन है। हमने बताया था वो ना ही अपने नाम पर एक्टिविटी कर सकेंगे, ना ही स्यू कर सकेंगे, ना ही स्यू हम कर पाएंगे उनको, तो ये बन जाएगा आपका impersonal accounts. Hope things are clear, everyone. आगे बढ़ते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पहले तो होता क्या है? तो ड्राइंग्स इज वंस अगेन रिप्रेजेंटिंग ओनर्स अकाउंट। तो जैसे ही ओनर बोला यानी एक चीज पक्का है, पर्सनल तो बन गया। अब ओनर अकाउंट में क्या है? तो इट इज मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। हम बिजनेस के एंगल से सब देखते हैं, ओनर बिजनेस से बेनिफिट ले गया, रिमेंबर बिजनेस उससे वो बेनिफिट वापस लेगा। कल मैंने ये बताया था, किसी ने ये पूछा कि सर अगर नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, आज नहीं तो कल, एंड दैट्स वेयर यू रिटर्न इट बैक। होप दैट इज क्लियर। तो बिकॉज बिजनेस को ओनर से पैसा लेना बाकी है, तो ये हो गया बिजनेस का असेट, और असेट में यू में से करंट और नॉन करंट, वाई करंट और नॉन करंट, ओनर मे रिटर्न विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, मे नॉट रिटर्न इट विद इन वन फाइनेंशियल, डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट, किस तरह का माइंडसेट है ओनर का। होप दैट इज क्लियर। तीसरे पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने अभी बात की कि इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर यूजिंग समबडीज मनी। यहां पर किसका पैसा यूज हो रहा है? तो इट इज मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? बिजनेस का। तो ये बनेगा बिजनेस का रिसीट, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। और क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है तो सीधा सीधा बन जाएगा impersonal account. Hope this is making sense. रेवेन्यू रिसीट में आगे कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसलिए सोचना भी मत। Hope things are clear. Fifth is loan borrowed.
As I discussed in all these days, when I say loan borrowed, किससे borrow करोगे? या तो इंडिविजुअल से करोगे, या तो बैंक से करोगे, या तो कोई कंपनी से करोगे, या तो फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से करोगे. एंड हु आर ऑल दिस? रिमेंबर, दिस ऑल आर नथिंग बट पर्सनल लोन्स. और लोन लिया है, लौटाना बाकी है, इट्स योर लायबिलिटी. अगर शॉर्ट टर्म है तो करंट, अगर लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट. डिपेंड्स. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन. वंस अगेन इंटरेस्ट आया, यानी या तो रेवेन्यू रिसीट है या तो रेवेन्यू एक्सपेंस है. जो भी है, एक चीज पक्का है, इम्पर्सनल तो नहीं है. अब रिसीट है या पेमेंट है, सेक्रीफाइस देखो. वी हैव बोरोड लोन, मे बी फ्रॉम बैंक, मे बी फ्रॉम इंडिविजुअल, मे बी फ्रॉम कंपनी, मे बी फ्रॉम कोऑपरेटिव. वी हैव बोरोड लोन. सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? सामने वाले का. तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम, अपने लिए यही इंटरेस्ट बनेगा अपना रेवेन्यू एक्सपेंस. उसमें नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इट्स योर इन डायरेक्ट expense. Hope first 6 are making sense to everyone. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Next is salary. Now salary is basically a remuneration paid by employer to his employee for giving his time, energy and intellect to the business of employer. If this remuneration is paid to a person who is directly involved in production, it is wages. If remuneration is paid to a person who is not directly involved in production, it is salary. This is paid every year, rather every month. So it's your basically revenue expense, nothing to do with production, so it's your indirect expense. क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस है तो सीधा impersonal तो बन गया है. Hope things are clear. Next is salary payable. ये जानबूझ के मैंने आपको साथ में दिए because that's what where most of the students, forget about students, when teachers go wrong. What they see over here is salary. और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी सैलरी पेबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी आता है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरी. नंबर वन, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम whom we have received the service but to whom we are yet to pay, payable, pay back, yet to pay back. So ये बन गया आपका लायबिलिटी. एक साल में पे कर देंगे तो current liability. Hope that is clear. And yet to pay back, it represents a person from whom you have received the service but to whom you are yet to serve back. It represents a person, so it is by nature personal account. Hope this entire concept is clear. Hope no one, I repeat, no one will go wrong with this. कहानी clear है? आगे बढ़ते हैं. Salary paid in advance. Now once again most of them will make this error. ये रीड करेंगे, इसे रीड नहीं करना है. When I say salary paid in advance or prepaid salary, these are the term I use. These are the terms, synonyms I used. I'm not talking about salary, number one. I'm talking about the person. It is representing the person to whom we have paid. Salary paid, यानी पे कर दिया है बॉस, मगर एडवांस में किया है, यानी आपने पे कर दिया है मगर आपको उनसे सर्विस लेना बाकी. आपको उनसे यानी किन से? जिनको आपने सैलरी पे किया है. So it is personal. I'm talking about some person. एंड जिससे आपको सर्विस लेना बाकी है. देना बाकी है तो लायबिलिटी, लेना बाकी है तो एसेट.
एक साल के अंदर सर्विस ले लेंगे हम, तो इट्स योर करंट asset. Hope this is absolutely clear to everyone and is making sense. Moving to next one, rent received. रिसीव्ड है तो रिसीट होगी, रिसीट या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल है, बेनिफिट पर नहीं जाते, फ्रीक्वेंसी पर जाते। रेंट आपको हर महीने मिलेगा, यानी साल में 12 बार। होप दैट इज क्लियर। सो दैट मेक्स इट अ रेवेन्यू receipt. And when I say rent received, so if you can understand, it's a revenue receipt, revenue expense, revenue receipts, loss and gain, they all are always and always in personal accounts. Things are clear to everyone. आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीवेबल इसी के कॉन्टेक्स्ट में है ये। Now when I say rent receivable, remember once again exactly on the same line, don't see rent over here. When I say rent receivable, receivable यानी मिलना बाकी है, यानी हमने किसी को सर्विस दे दी है, हमारा किसी ने प्रॉपर्टी यूज कर लिया है, मगर हमें उससे पैसा रिसीव करना बाकी है। उससे यानी किससे? कोई पर्सन से। तो इट इज डेफिनेटली नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, एंड उससे पैसा लेना बाकी है, तो ये हो गया असेट। एक साल के अंदर ले लेंगे तो current asset. Hope this entire concept is absolutely clear to everyone. इसी के कनेक्शन में next one, that is rent received in advance. Once again don't focus on rent. When I say rent received in advance, यानी नंबर 1 रिसीव कर लिया है, एडवांस में किया है, यानी रिसीव कर लिया है, मगर हमने अभी उसको प्रॉपर्टी यूज करने को ही नहीं दिया। रिसीव कर लिया है, हमें उसको प्रॉपर्टी यूज करने को देने का बाकी है, तो ये बन जाता है आपका ना लायबिलिटी। कितने टाइम में दे देंगे? तो विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो करंट liability, and it represents the person from whom you have received money but to whom you are yet to serve back. It represents the person. So remember, this is also personal account. Hope this entire combo, see, if you can understand what I am doing is I am playing in combinations. आपको पहले 3 जो थे उसमें कोई ना कोई पैसा दे रहा है या ले रहा है, और उस पर हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं। होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट जो कॉम्बो है वो एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस आर कॉम्बोज व्हिच आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, एंड होपफुली यू आर कंसेप्चुअली वेरी क्लियर विद दिस एंटायर कॉम्बो। होप दिस आर क्लियर टिल हियर। आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस, देखिए हर 2 महीने ये करना पड़ता है, यानी ये बनेगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, और रेवेन्यू एक्सपेंस में नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया तो impersonal. Somebody might say, sir, what if I only identify till revenue expense? Indirect expense में identify नहीं करूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। 2 चीजें। नंबर 1, मेरा पढ़ाने का तरीका कभी मार्क्स ओरिएंटेड नहीं है।
हम जो भी कर रहे हैं वो मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल मुझे मत पूछना। दूसरा, आई डोंट नो अबाउट स्कूल में ये ज़रूरत है कि नहीं, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। व्हाट आई एम कंसर्न इज विद द डे आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट, मैंने आपको ये सिखाया है तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूँगा। अगर नहीं मिला तो भले ये सब सही होगा, मगर ये नहीं लिखा, पूरे मार्क्स काट दूंगा। सो मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर इन डेप्थ, ठीक है। ऊपर ऊपर वाला मुझे नॉलेज नहीं चाहिए। वो 1 मार्क किससे मिलेगा, सर इतना लिखने से मेरा 1 मार्क आ जाएगा, सर इतना लिखने से मेरा 2 मार्क आ जाएगा। ना ही मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ना ही मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। Goes very simple. We are not here to gain marks, we are here to gain superior knowledge. Hope things are clear. So make sure that when this topic is done, see मेरा फंडा बहुत सिंपल है। ये टॉपिक जिस दिन मैं खत्म करूंगा उस दिन आपसे ज़्यादा, मैंने जिसको भी पढ़ाया उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होना चाहिए। फिर उससे मार्क्स कितने आते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। Hope things are clear. So don't be after me, sir. આવું લખીએ તો માર્ક્સ કેટલા મળશે ને આવું ન લખીએ તો કેટલા મળશે, મારામાં બધું જ લખવાનું. If you don't write, you lose your marks. Hope things are clear. आगे बढ़ते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये स्टेशनरी का वो हिस्सा है जो साल के एंड में अनयूटिलाइज रह गया। क्योंकि इस साल के एंड में अनयूटिलाइज रहा तो फेंक देंगे क्या, नहीं, अगले साल यूज करेंगे। तो साल के एंड में ये वो हिस्सा है जिससे बेनिफिट मिलना बाकी है। क्योंकि मिलना बाकी है तो ये हो गया असेट, और कब तक मिल जाएगा तो 1 साल के अंदर, तो ये हो गया करंट असेट। अब स्टेशनरी स्टॉक, अगर मान लो ये पेन पड़ा हुआ है, इसको मैं उछालता हूं और उछालता हूं और उछालता हूं, डू यू थिंक इट कैन स्यू मी? कि यार कितना उछालेगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है मुझे, ऐसे मत कर। डू यू थिंक इट कैन स्यू मी? नो। अगर मैं लिख रहा हूं और एकदम से ये पेन बंद हो गया या लीक हुआ और मेरे शर्ट पर इसका इंक पड़ा, कैन आई स्यू दिस? नो। या फिर ये पेन को ऐसा विचार आ सकता है कि सर इतना सारा आपने मुझसे लिखा ना, तो मुझे खुद को पता चल गया है कि रेंट रिसीव्ड इम्पर्सनल है और रेवेन्यू रिसीट है, तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं आपके बिना ही बिजनेस कर लूंगी। ऐसा ये पेन कर सकता है? नहीं। सो रिमेंबर, इट डजंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द पॉइंट्स, सो इट इज योर इम्पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। परचेज, remember when I say purchase I am talking about purchase of goods। हर दिन, हर वीक, हर फोर्टनाइट, हर महीने, हर 4 महीने, हर 6 महीने, एटलीस्ट साल में 1 बार तो करना ही पड़ेगा। सो इट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर रॉ मटेरियल का परचेज करते हैं तो इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंस बोला यानी इम्पर्सनल तो पक्का ही है। थिंग्स आर क्लियर। उसके बाद सेल्स, तो सेल भी गुड्स का ही है। हर दिन करना चाहेंगे, अगर नहीं हुआ तो हर वीक करना चाहेंगे, नहीं हुआ तो हर फोर्टनाइट करना चाहेंगे, नहीं हुआ तो हर महीने करना चाहेंगे, नहीं हुआ तो हर क्वार्टर करना चाहेंगे, नहीं हुआ तो हर 6 महीने करना चाहेंगे, नहीं हुआ तो साल में 1 बार तो करना चाहेंगे। दैट्स वेयर दिस इज योर रेवेन्यू रिसीट। और क्योंकि रेवेन्यू रिसीट हुआ तो ये पर्सनल हो गया। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ गुड्स। अगर मैं प्रकाश भाई हूं, ऐसे पेट वाले ऐसे जो है वो प्रकाश भाई हूं, तो यही पेन मेरे लिए देन बन जाता है नॉट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यही पेन बन जाते हैं मेरा स्टॉक ऑफ गुड्स बिकॉज आई डील इन देम। और बात वही आती है, ये गुड्स का वो हिस्सा बन जाता है जिससे बेनिफिट मिलना बाकी है, तो यस इट्स माय एसेट,
और मैं चाहूंगा कि अगले साल बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल बिक जाए. सो इट इज करंट एसेट. और जैसे मैंने बताया, उछालू फेंकू ये कुछ नहीं करेगा. सो इट इज इम्पर्सनल. बिल्डिंग तो पहले तो बिल्डिंग आपका असेट है, एक कैपिटल एक्सपेंस है. जब आप बाय करते हो तो इट्स नॉट रिकरिंग इन नेचर. एंड असेट में नॉन करंट असेट, क्योंकि एक बार लिया फिर बार बार नहीं लेना है. होप दैट इज क्लियर. उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा है. और बिल्डिंग का भी वही है. मैं इसको ये दीवार को लात मारूं या फिर ये दीवार मेरे पर सिर पर गिर जाए, ना ही मैं इसको स्यू कर सकता हूँ ना ही ये मुझे स्यू कर सकता है. ये दीवार इतने टाइम से अकाउंट्स सीख रही है, सुन रही है. कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, तो शायद ये दीवार भी अकाउंट सुन रही है. मगर कैन इट डू बिजनेस ऑन इट्स ओन? नो, इट कांट. एंड दैट्स वेयर इट इज impersonal. Next is depreciation on building. किसी ने मुझे पूछा सर डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ये क्या है, पर्सनल है या इम्पर्सनल है? किसी ने मैसेज भी किया. जिसने भी किया, वंस अगेन यू आर नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस. नो द मीनिंग एंड देन अप्लाई योर रूल्स. मीनिंग depreciation is that part of capital expense which got exhausted at the end of financial year. Definition number 1. Definition number 2, it is gradual and continuous decrease in value of asset, either due to usage or passing of time or obsolescence. In either case, if you can remember, it's your revenue expense. Can be direct, can be indirect. ये भी मैंने बात की थी. और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसीव, लॉस एंड गेन, दे आर ऑल इम्पर्सनल. Hope things are clear. Last is advertisement expense. Once again हर साल करना पड़ता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ. नथिंग टू डू विथ प्रोडक्शन, सो ये इनडायरेक्ट हुआ. और रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया तो impersonal तो है ही. Hope things are clear to everyone and hope this is making sense. See, इसके अलावा भी we have almost taken 37 to 38 session only understanding the terms, जिसमें हमने कम से कम 70 से 80 टर्म्स किए. अगर वो 80 टर्म्स को अगर आप यहाँ पर डालोगे तो हर किसी का एक क्लासिफिकेशन होगा पर्सनल इम्पर्सनल में, और हर किसी का एक स्वभाव होगा एज ईदर एक्सपेंस और रिसीट और लॉस और गेन और असेट और लायबिलिटी. हर एक का कैसे जानोगे? याद करके? गलत. पीपल डू दैट बट दैट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग. द ओनली वे टू डू दैट इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. हर एक चीज का डेफिनेशन दिया है, हर एक चीज का मीनिंग बताया गया है. हर एक चीज का मीनिंग समझोगे, स्वभाव फ्री में मिलेगा. होप थिंग्स आर क्लियर. सो दैट वाज योर होमवर्क. होपफुली you found it interesting. Hopefully you are getting things in your mind. अप्रोच पकड़ना, आंसर नहीं, तो वो अप्रोच सही पकड़ के चलना. ठीक है, तो शायद एक लेवल के बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अप्रोच गलत पकड़ोगे तो बिल्कुल में 1 महीने बाद भी आप पूछोगे सर वो कैरियज इनवर्ड सर पर्सनल है या इम्पर्सनल है? ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे घटिया सवाल आएंगे, क्योंकि आप अप्रोच गलत पकड़ो. क्योंकि मैंने कैरियज इनवर्ड है, ये तीनों सेशन में कैरियज इनवर्ड था ही नहीं. तीनों सेशन में फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड था ही नहीं. तीनों सेशन में कैश बैंक बैलेंस था ही नहीं. तीनों सेशन में. होप दैट इज क्लियर. सो देयर आर फ्यू व्हिच आई डिडंट यूज. बैंक ओवरड्राफ्ट आई नेवर यूज्ड. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस आई नेवर यूज्ड. मगर
मैंने इसका मीनिंग समझाया है। कुछ भी नया टर्म आता है डरिए मत, ठीक है, मतलब समझिए उसका और फिर डिसाइड करिए, क्लासीफाई करिए कहाँ जाएगा। थिंग्स आर क्लियर। सैटरडे के टेस्ट में ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। सो प्रिपेयर वेल, ठीक है, प्रिपेयर ऑल द मीनिंग्स अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिकल स्टफ, ठीक है। सैटरडे को डाउट सेशन, सो कीप योर डाउट्स रेडी, बॉम्बार्ड मी विथ योर डाउट्स बट विथ योर सेंसिबल डाउट्स, ठीक है। खुद भी मेहनत करना, सीधा मेरे पर मत डाल देना सर वो मीनिंग नहीं पता चला, वापस बताओ ना, वीडियो है आपके पास, replay it, getting the idea, making sense, everyone, there we end the session. Hashtag घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe and take utmost care of your mental and physical health. See you tomorrow.